Welcome to the ophthalmology lectures. I am Yawar Farooq, optometrist working at Alimdad Eye Care in Srinagar. Today we will discuss about the ocular motility. So here in case of ocular motility we will discuss about the types of muscles, origin and the insertion of muscles, ocular motility and the uniocular movements and its types, and also the binocular movements and its types. Now, first of all, today we'll discuss about the basic types of the muscles. In case of the extraocular muscle, usually there are the six different types of the muscles. Out of the four are the recti muscles and the two are the obliques muscles. In case of the recti muscles, there is the first one, that is this muscle is called as the medial rectus, and there is also another one that is called as the lateral rectus, and the third muscle is called as the superior rectus, and the fourth one is the inferior rectus. So these are basically the four recti muscles, and after that there is the two oblique muscles. In case of the two oblique muscles, the first one is that is the superior oblique muscle, and the another one is that is the inferior oblique muscle. So these are basically the six extraocular muscles which help us in the movement of the eyeball as well as control the movement of eyeball. Now firstly, what is basically their origin and the insertion? So if we discuss about the origin and insertion, basically we can say the first four recti muscles, all these four recti muscles, they basically originate from this point that is called as the annulus of Zinn, and this is the annulus of Zinn, whereas actually it is a circular tendinous ring where actually this origin of muscles takes place. So these are the four recti muscles which get originates from the point of view that is called as the annulus of Zinn. Now here after that, the first one, that is the medial rectus, and this medial rectus is directly inserted into by the sclera at the distance of about by the 5.5 mm. Now if this part, अगर हम मान लेंगे ये पार्ट जो है, देखो यहाँ पे जो हमें दिस पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज द लिम्बस, तो इसको हम यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, इस पार्ट को हम बोलेंगे दिस इज द कॉर्नियोसेक्लेरल जंक्शन, दैट दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द लिम्बस. Now at the origin, so origin has been takes place from the point of annulus of Zinn. Now the distance remaining from this part and this, it is basically the 5.5 mm. Same in case of the lateral rectus. Lateral rectus is basically originates from the annulus of Zinn, and it also inserts into by the scleral part at the distance of the 6.9. And same in case of the inferior rectus. So inferior rectus also originates from the point of annulus of Zinn and also inserts into by the sclera at the lower part, at the inferior part of the eyeball, and at a distance of the 6.5. And in case of superior rectus, it has been originates from the annulus of Zinn at the superior part, and also it is जो इसका ये पॉइंट होता है, दैट इज़ बेसिकली इसकी जो डिस्टेंस होती है, इट इज़ यूजुअली 7.7 mm. So now these are basically the origins and the insertion of the four recti muscles. Now come to the point of the other two muscles, that is superior oblique muscle. It is basically originates the above the bone medial to the optic foramen, and it basically inserts, इसका इंसरेशन जो होता है वो अपर एंड आउटर पार्ट ऑफ द सेक्लेरा बिहाइंड द इक्वेटर. सिंपली सा अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दिस इज़ बेसिकली द सुपीरियर ओब्लिक मसल, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा ये अगर हमारी जो है सुपीरियर ओब्लिक मसल, ठीक, तो इसका जो होता है इंसरेशन वो इसका दैट इज़ अपर एंड आउटर पार्ट ऑफ द सेक्लेरा बिहाइंड द इक्वेटर. एंड सेम इन केस ऑफ इफ यू टॉक अबाउट द inferior oblique muscle, this muscle is basically the inferior oblique muscle. So inferior oblique muscle, it also originates at around tendon orbital part of the maxilla and inserts at the lower, this is the lower part, and it inserts basically the lower and upper part of the sclera behind the equator. So this is simply the origin and the insertion. Now come to the point of that is the types of
First of all, the ocular motility. Ocular motility has mainly the two important types. The first one is that is the uniocular movements. एक इसमें uniocular movement होता है जो कि movement of one eyeball, and second is basically that is the binocular movements, यानी कि movement होता है दोनों आंखों का. यूनिओक्यूलर मूवमेंट्स में हमें डिफरेंट 6 टाइप्स होते हैं. वन इज द एडक्शन, सेकंड इज द एबडक्शन, थर्ड इज द इलिवेशन, डिप्रेशन, इंटॉर्शन एंड एक्सटॉर्शन. और इन केस ऑफ द बाइनोक्यूलर मूवमेंट्स, इसमें हमें दो मेन टाइप्स होते हैं. वन इज द वर्शंसेस एंड द वर्जेंसेस. जो वर्शंसेस और वर्जेंसेस होते हैं बेसिकली इसमें जनरली हमें वर्शंस में डिफरेंट 10 टाइप्स होते हैं, एंड इन केस ऑफ वर्जेंसेस इट हैज़ मेनली द 2 टाइप्स. So these are the basic ocular motility. Now come to the point of view that is the uniocular movement, is that is movement of the eyeball. ठीक, तो movement of eyeball एक single eyeball हम देखेंगे. इसमें फर्स्ट टाइप जो होता है दैट इज बेसिकली द एडक्शन. एडक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, एडक्शन इज सिंपली द इनवर्ड मूवमेंट. एडक्शन का मतलब होता है इनवर्ड मूवमेंट, एंड इट इज़ अ मीडियल रोटेशन. मान लीजिए यहाँ पे दिस इज द राइट आई, यह हमारी राइट आई है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इनवर्ड मूवमेंट होता है. दिस इज बेसिकली द इनवर्ड मूवमेंट. ओके, नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एडक्शन, एंड इट ऑकर्स. ये क्यों होता है, बेसिकली दिस हैज बीन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ दिस मीडियल रेक्टस मसल. ये तब होता है जबकि एक्शन मीडियल रेक्टस, इसको मीडियल रेक्टस जब कंस्ट्रिक्ट होती है तब जो हमारी आँख है वो अंदर मीडियल साइड की तरफ जा रही है. And the second part is that is called as the adduction, that is abduction. So abduction is the second part. ये हमारी लेफ्ट आई है, ठीक. तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज बेसिकली द आउटवर्ड मूवमेंट, यानी कि हमारी जो आँख है वो लेटरली जा रही है. ये लेफ्ट आई की मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ. तो लेफ्ट आई जो है ये हमारी आँख जो है ये बाहर की तरफ जा रही है. दिस इज बेसिकली द called as the abduction, and this abduction is occurs with the help of muscle that is called as the lateral rectus. तो ये होता है क्यों, because of the contraction of the lateral rectus, क्योंकि यहाँ पे जो हमें ये lateral rectus मसल है ये constrict हो रही है और हमारी जो आँख है वो बाहर की तरफ जा रही है. ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा है कि abduction is the process which has been basically the outward movement and it is a lateral rotation along the vertical axis. तो इसमें यहाँ पे कंट्रक्शन किसकी होती है, दैट इज इट इज कंट्रक्शन ऑफ द लेटरल रेक्टस मसल. Now come another point, that is the third one, that is the supraduction or the elevation. Supraduction और elevation की अगर हम बात करेंगे, it is simply the upward movement. ये upward movement होता है. तो upward movement and along the horizontal axis, इसको हम बोलेंगे दिस इज सिंपली कॉल्ड एज द सुप्राडक्शन और एलिवेशन. एंड आफ्टर दैट देयर इज द इंफ्राडक्शन और डिप्रेशन. इंफ्राडक्शन और डिप्रेशन इज सिंपली मीन बाय द डाउनवर्ड मूवमेंट. ये डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, यानी कि हमारी आई बाल जो है जब हम नीचे किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हैं तो हमारी आई बाल जो है वो नीचे जा रही है दोनों आगे, तो इसको हम बोलेंगे सिंपली इंफ्राडक्शन और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द डिप्रेशन. Now after that there is the another one, that is encyclodection or intorsion. जो encyclodection और intorsion होता है ये भी rotatory movement होता है. It is actually a rotatory movement along the anterior posterior axis in which the superior pole of cornea at 12 o'clock position it moves basically laterally, that is called as the internal rotation. यानी कि जो हमारा ये it moves medially. अगर हम intorsion में देखेंगे यहाँ पे ये move होता है basically medially. तो medially rotation होता है but along the anterior posterior axis with the superior pole of cornea. Now this process is simply called as the, इसी को हम बोलते हैं intorsion or it is also called as the encyclodection. And after that there is the another one last in case of the uniocular movement, is that is the extortion or the excyclodection. देखो extortion और excyclodection जो होता है ये भी हमारा रोटेटरी मूवमेंट होता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें जो बेसिकली आई बाल जाती है इट बेसिकली एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इन विच द सुपीरियर पोल ऑफ कॉर्निया, ये एक रोटेशनली मूवमेंट होता है, बट यहाँ पे हमें मीडियल रोटेशन लेटरल रोटेशन होती है. इट इज़ बेसिकली रोटेटेड एट द लेटरली. दिस इज सिंपली कॉल्ड एज द एक्साइक्लोडेक्शन और इसी को हम बोलते हैं एक्सटॉर्शन. तो उसके बाद ये होता है हमें
कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 6 मूवमेंट्स होते हैं। फर्स्ट अगर हम देखेंगे मसल लेटरल रेक्टस, जो लेटरल रेक्टस हमें हेल्प करती है वो एबडक्शन में हमें हेल्प करती है। सिंपली सा इन केस ऑफ द लेटरल रेक्टस सो इट हेल्प इन द एबडक्शन, तो यह हमें एबडक्शन में हेल्प करती है। एबडक्शन हमने अभी देखा है, दिस इज बेसिकली द लेटरल रोटेशन, जो कि लेटरल रोटेशन में होती है। सेकंड वन हमने देखा एडक्शन, एडक्शन में हमें मीडियल रेक्टस हेल्प करती है, तो इसमें हमने देखा इट इज़ सिंपली द मीडियल रोटेशन। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक, ये चार मसल्स जो है दे हैव द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्शंस। तो इनकी जो एक्शंस है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्शियरी। सुपीरियर रेक्टस की फर्स्ट एक्शन जो है दैट इज बेसिकली इलिवेशन। तो यहाँ पे हमने देखा इलिवेशन इज अपवर्ड मूवमेंट एंड इंटॉर्शन इज द एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट along, it is a medially, and adduction is basically the lateral rotation, sorry, medial rotation. And after that there is the another one that is called as the inferior rectus। तो inferior rectus का यहाँ पे क्या है, एक तो इसका डिप्रेशन है, डाउन है, जब हमारी आंखें जाती है नीचे साइड उसमें हमें इंफीरियर रेक्टस हेल्प करते हैं, एंड एक्सटॉर्शन में हेल्प करती है, एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट लेटरली होता है। एंड उसके बाद एडक्शन, सो एडक्शन इज सिंपली द मीडियल रोटेशन, तो उसमें भी हमें ये हेल्प करती है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे सुपीरियर रेक्टस, जो सॉरी सुपीरियर ओब्लिक मसल। सुपीरियर ओब्लिक मसल जो एक तो हमें इंटॉर्शन में हेल्प करती है, एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट मीडियली साइड। एंड सेकंड वन इज दैट इज द डिप्रेशन, यानी कि जब हमारी आंख डाउनवर्ड की तरफ जा रही है। एंड थर्ड वन इज दैट इज एबडक्शन, एबडक्शन इज सिंपली द लेटरल रोटेशन। एबडक्शन हमने देखा ये एक आउटवर्ड मूवमेंट होता है, इट इज़ ए लेटरल रोटेशन, जो कि हमारी सुपीरियर ओब्लिक मसल इसमें हेल्प करती हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ पे इंफीरियर ओब्लिक मसल, देखो इंफीरियर ओब्लिक मसल एक तो इसका है एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन का हमने अभी देखा है सिंपली सा इंफीरियर ओब्लिक। तो इंफीरियर ओब्लिक में हमें यहाँ पे एक एक्सटॉर्शन होता है, तो एक्सटॉर्शन हो गया ये आउटवर्ड मूवमेंट, लेटरल रोटेशन। उसके बाद यहाँ पे इलिवेशन, इलिवेशन इज सिंपली द अपवर्ड मूवमेंट। एंड एबडक्शन, एबडक्शन इज अगेन द लेटरल रोटेशन। सो दिस रोटेशन इज बेसिकली द एंटीरियर पोस्टीरियर रोटेशन, और ये जो होती है डायरेक्टली आउटवर्ड रोटेशन होती है। एंड इलिवेशन इज द अपवर्ड मूवमेंट। सो दीज आर द डिफरेंट एक्शंस ऑफ द डिफरेंट मसल्स, ये इनके एक्शंस होते हैं। नाउ आफ्टर दैट कम टू द अनदर पॉइंट, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे दैट इज़ द बाइनोक्यूलर मूवमेंट। सो बाइनोक्यूलर मूवमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, देखो बाइनोक्यूलर मूवमेंट्स में हमें दो टाइप्स होते हैं, वन इज़ कॉल्ड एज द वर्शंस एंड सेकंड इज़ बेसिकली द वर्जेंसेस। सो वर्शंस की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, वर्शंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द कंजुगेट मूवमेंट, वर्शंस को हम ऑल्सो बोलते हैं कंजुगेट मूवमेंट। ये एक सिमेट्रिक मूवमेंट होता है, इट इज़ अ सिमेट्रिक मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ सिमेट्रिक मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन। अगर हमारी ये हम मान लेंगे ये हमारी राइट आई, ये हमारी लेफ्ट आई है, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, या तो आई जाएगी राइट साइड में, दोनों जाएगी राइट साइड में, या तो जाएगी अपर साइड में दोनों, या जाएंगे डाउन साइड, या जाएंगे लेफ्ट साइड। सो सेम डायरेक्शन, यानी कि साइमल्टेनियसली दोनों आंखें साइमल्टेनियसली मूवमेंट करती है, इधर दे मूव ऑन द राइट साइड या अपर साइड, डाउन साइड और द लेफ्ट साइड। नाउ दिस प्रोसेस इज सिंपली, इस प्रोसेस को हम सिंपली वर्शंस बोलते हैं। तो वर्शंस में हमें डिफरेंट 10 टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है दैट इज कॉल्ड एज द डेक्स्ट्रोवर्शन। यहाँ पे हम कुछ टर्म्स याद रखेंगे। डेक्स्ट्रो जो होता है, डेक्स्ट्रो इट सिंपली मीन्स द, डेक्स्ट्रो को मतलब यहाँ पे होता है राइट साइड, ओके। एंड वर्शंस को हमने अभी पढ़ा, वर्शन इज बेसिकली द साइमल्टेनियस मूवमेंट ऑफ बोथ द आइज इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि डेक्स्ट्रो वर्शन इज़ द मूवमेंट ऑफ बोथ द आइज राइट साइड। देखो यहाँ पे जब मूवमेंट हम देख रहे हैं, इसका भी राइट साइड से मूवमेंट हो रहा है, इसका भी राइट साइड मूवमेंट हो रहा है। एंड ये मूवमेंट राइट साइड एट ए साइमल्टेनियसली क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे कंट्रैक्शन होती है। एक तो ये इसकी राइट आँख, सो राइट की
हम देखेंगे राइट की लेटरल रेक्टस, ये राइट की लेटरल रेक्टस और लेफ्ट साइड की मीडियल रेक्टस, जो इसकी लेफ्ट आंख है यहाँ पे जो इसकी मीडियल रेक्टस है वो कंट्रैक्ट हो रही है, उसकी वजह से जो ये आंख है ये राइट साइड जा रही है। ना इसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रोवर्शन। सो डेक्स्ट्रोवर्शन इज सिंपली अ मूवमेंट ऑफ बोथ द आइज टू राइट साइड, यानी कि राइट साइड दोनों आई जा रही है। उसके बाद हमने देखा इट रिजल्ट इज ड्यू टू अ साइमल्टेनियस कंट्रक्शन ऑफ राइट लेटरल रेक्टस, राइट की लेटरल रेक्टस और लेफ्ट की medial rectus. Now this process is simply called as the dextroversion, तो इसको हम बोलते हैं dextroversion. After that there is the levoversion. लीवोवर्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लीवोवर्शन भी एक मूवमेंट होता है, बट लीवो का मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे सिंपली द लीवो का मतलब होता है लेफ्ट, तो लीवो मीन्स लेफ्ट and version means same simultaneous contraction in both the eyes in a same direction. तो यहाँ पे जो इसकी दोनों आंखें वो जा रही हैं लेफ्ट साइड की तरफ, तो लेफ्ट साइड की तरफ ये क्यों जा रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द साइमल्टेनियस कंट्रक्शन ऑफ द लेफ्ट लेटरल रेक्टस एंड राइट की मीडियल रेक्टस। जब यहाँ पे साइमल्टेनियसली कंट्रक्शन हो रही है राइट की मीडियल रेक्टस और लेफ्ट की लेटरल रेक्टस, यानी कि यहाँ पे जो मीडियल रेक्टस राइट की और लेफ्ट की जो होगी वो लेटरल रेक्टस होगी। सो लेफ्ट की होगी लेटरल रेक्टस और राइट की होगी यहाँ पे मीडियल रेक्टस। तो जब यहाँ पे ये कंट्रक्शन हो रही है तो दोनों आंखें हमारी लेफ्ट साइड जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज द लीवोवर्शन. Now here after that there is the another type that is called as the supraversion. Supraversion is the upward movement. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोनों आंखें जो है वो अपर साइड की तरफ जा रही हैं, that is basically the upward movement. तो ये upward movement simultaneously क्यों होता है? It is basically ये इसलिए होता है there is the it results due to a simultaneous contraction of बायलेटरल सुपीरियर रेक्टस. एक तो इसमें कंट्रक्शन होती है बायलेटरल सुपीरियर रेक्टस, दिस सुपीरियर रेक्टस एंड द इंफीरियर ओब्लिक मसल, यहाँ पे होती है इंफीरियर ओब्लिक एंड देयर इज द सुपीरियर रेक्टस. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बायलेटरली देयर इज द कंट्रक्शन ऑफ द सुपीरियर रेक्टस मसल एंड द इंफीरियर ओब्लिक मसल. This process is simply called as the supraversion. So supraversion is the upward movement and it is the basically primary position. It results due to a simultaneous contraction of the bilateral superior rectus and the inferior oblique muscle. इसको हम बोलेंगे supraversion. नाउ आफ्टर दैट उसके बाद यहाँ पे हमें और एक टाइप होता है दैट इज कॉल्ड द इंफ्रावर्शन. इंफ्रावर्शन इज सेम, दैट इज द डाउनवर्ड मूवमेंट. सुप्रावर्शन का अपोजिट. देखो इंफ्रावर्शन ये होता है, इंफ्रावर्शन में क्या होता है इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट होता है. ये हमारे आंखें जो है साइमल्टेनियसली दोनों डाउनवर्ड की तरफ क्यों देख पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ पे बायलेटरल कंट्रक्शन होता है. एक तो यहाँ पे इंफीरियर रेक्टस मसल, ये जो होती है इंफीरियर रेक्टस मसल इस साइड की, सो इंफीरियर रेक्टस मसल एंड देयर इज द सुपीरियर ओब्लिक मसल. इंफीरियर रेक्टस मसल एंड सुपीरियर ओब्लिक मसल, जब इन दो मसल्स की कंट्रक्शन हो रही है तब हमारी आंख जो है वो लोअर साइड की तरफ जा रही है. सो इस पॉइंट को हम बोलेंगे दैट इज़ बेसिकली जब भी ये पोजीशन होगी तो इसको हम बोलते हैं इंफ्रावर्शन. इंफ्रावर्शन के बाद हमें यहाँ पे होता है डेक्स्ट्रोवर्शन. देखो डेक्स्ट्रो को हमने पहले एक्सप्लेन किया, इट इज़ डेक्स्ट्रो इलिवेशन. डेक्स्ट्रो को मैंने पहले ही बोला, डेक्स्ट्रो मीन्स द राइट वर्ड, ओके, राइट साइड, एंड इलिवेशन इज द अप साइड. इलिवेशन इज मीन्स द अपवर्ड मूवमेंट्स. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक तो आंख राइट साइड की तरफ जा रही है. देखो दोनों आंखें जो है वो राइट साइड की तरफ है, हमें यहाँ पे दिख रहा है अच्छे से, दोनों आंखें राइट साइड की तरफ है, लेकिन अपर साइड की तरफ है, अप साइड. सो इसको हम बोलेंगे जब भी हम इस तरह का मूवमेंट देखेंगे, इट इज़ बेसिकली called as the dextro elevation and it is due to the results of a simultaneous contraction of, एक तो इसमें राइट की सुपीरियर रेक्टस मसल, ये मसल जब कंट्रैक्ट होती है, एंड लेफ्ट आई की इंफीरियर ओब्लिक मसल.
याद रखना। तो इसमें क्या होता है जनरली कि एक जब हमें ये मूवमेंट होता है, डेक्स्ट्रो मीन्स राइट साइड एंड एलिवेशन इज सिंपली मीन्स द अप साइड मूवमेंट। सो दोनों आके एक तो राइट साइड भी है और अपर साइड भी है, तो इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो एलिवेशन। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कंट्रक्शन ऑफ द राइट सुपीरियर रेक्टस एंड द लेफ्ट इंफीरियर ओब्लिक ना। उसके बाद हमें और एक टाइप होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द डेक्स्ट्रो डिप्रेशन। देखो डेक्स्ट्रो सेम राइट साइड एंड डिप्रेशन मीन्स डाउन साइड। डिप्रेशन को हम जनरली बोलेंगे डाउन साइड। देखो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक तो पेशेंट इसकी आंख जो है वो तो राइट साइड की तरफ है, लेफ्ट आई भी राइट साइड की तरफ ही है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि एक तो राइट साइड की तरफ है और लेकिन डाउन साइड है। एक तो राइट साइड है और दूसरा डाउन साइड है। तो ये बेसिकली क्यों होता है? इसमें राइट की जो जो एक्शन बेसिकली इसमें करते हैं मसल्स, वो तो राइट की होती है इंफीरियर रेक्टस, राइट की इसमें होती है इंफीरियर रेक्टस, और लेफ्ट की इसमें होती है सुपीरियर ओब्लिक। सो लेफ्ट की सुपीरियर ओब्लिक और राइट की इसमें इंफीरियर रेक्टस। नाउ इसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो डिप्रेशन। सो डेक्स्ट्रो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? डेक्स्ट्रो डिप्रेशन हमने यहाँ पे देखा है सिंपली कि डेक्स्ट्रो डिप्रेशन जो है इट इज़ द मोमेंट ऑफ राइट एंड डाउन साइड, राइट एंड डाउन साइड। It is due to a simultaneous action of right inferior rectus, राइट की इंफीरियर रेक्टस और लेफ्ट आई की सुपीरियर ओब्लिक ना। उसके बाद हम दूसरे अनदर टाइप पे जाएंगे दैट इज कॉल्ड एज द लीवो इलिवेशन। लीवो को हमने पहले एक्सप्लेन किया, इट इज़ मीन बाय लेफ्ट इलिवेशन हमें पता है। अब इलिवेशन इज द अपसाइड मूवमेंट। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक तो पेशेंट की आई यहाँ पे लेफ्ट साइड है, दोनों लेफ्ट साइड है, एंड एलिवेशन इज बेसिकली द अपवर्ड, लेफ्ट साइड अपवर्ड मूवमेंट। तो ये लेफ्ट साइड अपवर्ड मूवमेंट क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ ए साइमल्टेनियस एक्शन ऑफ लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस। एक तो यहाँ पे लेफ्ट की सुपीरियर रेक्टस एक्शन करती है और राइट की इंफीरियर ओब्लिक मसल। लेफ्ट की सुपीरियर रेक्टस, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस एंड राइट इंफीरियर ओब्लिक। सो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज द लीवो इलिवेशन। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे लीवो इलिवेशन। आफ्टर दैट देयर इज द लीवो डिप्रेशन। अगेन लीवो मीन्स लेफ्ट साइड, डिप्रेशन इज सिंपली मीन्स बाय द डाउन साइड। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पेशेंट की आँख यहाँ पे लेफ्ट साइड है, दोनों लेफ्ट साइड है, प्लस यहाँ पे डाउन साइड है। सो इसको हम सिंपली बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज द लीवो डिप्रेशन। सो लीवो डिप्रेशन में कौन सी मसल्स हमें हेल्प करती है? एक तो इसमें राइट की होती है सुपीरियर ओब्लिक, यहाँ पे राइट की सुपीरियर ओब्लिक, और लेफ्ट की होती है इंफीरियर रेक्टस। सो राइट की हमने यहाँ पे देखा राइट की सुपीरियर ओब्लिक मसल, एंड लेफ्ट की जो मसल है यहाँ पे दैट इज इंफीरियर ओब्लिक मसल। This point of view is simply called as the levo depression. Levo means left side and depression means down side. इस तरह की एक्शन तब होती है राइट की सुपीरियर ओब्लिक और लेफ्ट की इंफीरियर ओब्लिक जब कंस्ट्रिक्ट होगी, तब हमें ये एक्शन होती है। यहाँ पे कंट्रक्शन होता है इन मसल्स का। Now here after that there is we will discuss here the another important one that is the dextrocycloversion। देखो dextrocycloversion क्या होता है? dextrocycloversion is again a rotatory movement। ये भी rotatory movement होता है। dextro means right side, okay, and cycloversion is basically the anterior posterior axis in which superior pole of cornea of the eye tilts towards the right। क्योंकि dextro है इसमें, तो ये अगर आँख है यहाँ पे क्या होता है? ये टिल्ट्स होते हैं टुवर्ड्स दिस राइट साइड। एंड आफ्टर दैट देयर इज इन केस ऑफ द लीवो वर्शन। लीवो वर्शन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे भी ये रोटेशनली मूवमेंट होता है अराउंड द पोस्टीरियर एक्सिस, बट लीवो इज सिंपली हमें पता है अब लेफ्ट साइड। यहाँ पे भी क्या होता है कि एट विच द सुपीरियर पोल ऑफ कॉर्निया बोथ द आइज टिल्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, towards the left side, okay, towards the left side। and अगर हम यहाँ पे देखेंगे बेसिकली यहाँ पे क्या होता है towards the
राइट साइड। सो दिस इज राइट साइड, ये हमारी आँख दैट इज राइट साइड। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमें जो आँख का सुपीरियर पोल ऑफ कॉर्निया और बोथ द आइज टिल्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इसको हम बोलेंगे लीवोसाइक्लोवर्शन। सो दीज आर द डिफरेंट 10 टाइप्स ऑफ द वर्शंस। नाउ अब हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ वर्जन्स। देखो वर्जन्स जो होता है, हमने देखा वर्शन इज बेसिकली द साइमल्टेनियस, ये एक साइमल्टेनियस मोमेंट होता है जिसमें हमने देखा है कि दोनों आंखें जो है वो साइमल्टेनियसली जा रही है इन सेम डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वर्जेंसेस का मतलब क्या होता है, ये एक डिसकंजुगेट मूवमेंट था, वो एक कंजुगेट मूवमेंट है, वो एक कंजुगेट मूवमेंट था, ये डिसकंजुगेट मूवमेंट है। इसमें भी हमें सिमेट्रिक मूवमेंट होता है दोनों आइज़ का, यानी कि साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी हमें मूवमेंट होता है, बट दिस मूवमेंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन इसमें हमें दो टाइप्स आते हैं। फर्स्ट वन इज दैट इज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। मान लीजिए हमें अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे कैसे समझ आएगी, लेट वी एक्सप्लेन। नाउ फर्स्ट दैट इज कन्वर्जेंस। देखो कन्वर्जेंस का मतलब यहाँ पे होता है कि इनवर्ड मूवमेंट, इसमें साइमल्टेनियसली इनवर्ड मूवमेंट। ये जो हमारी राइट आई यहाँ पे है, देखो राइट आई जा रही है नोज़ की तरफ यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे जो लेफ्ट आई है ये भी जा रही है यहाँ पे, दैट दिस इज बेसिकली द अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम देखेंगे राइट आई जा रही है लेफ्ट साइड की ओर, लेफ्ट आई जा रही है राइट साइड की ओर, सो इसको हम बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन। इसी का मतलब होता है यहाँ पे दैट इज कन्वर्जेंस। सो यही होता है डिसकंजुगेट मूवमेंट। अगर हमारी राइट आई जो है वो जा रही है लेफ्ट की ओर और लेफ्ट आई जो है वो जा रही है राइट की ओर, दिस प्रोसेस इज सिंपली कॉल्ड एज द कन्वर्जेंस। एंड इस टाइप सिक्वेंट को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट सिक्वेंट। इस टाइप कन्वर्जेंट को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट सिक्वेंट। नाउ उसके बाद यहाँ पे हमें वर्जेंस में और एक टाइप होता है दैट इज कॉल्ड एज द डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस इज बेसिकली अ डाइवर्जेंट सिक्वेंट, यानी कि डाइवर्ज होती है दोनों आइज। ये भी साइमल्टेनियसली एक मोमेंट ऐसा है जिसमें दोनों आइज क्या होती है आउटसाइड की ओर, विच रिजल्ट्स फ्रॉम द कंट्रक्शन ऑफ लेटरल रेक्टस। देखो यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे कंट्रक्शन होती है मीडियल रेक्टस की, ये होती है यहाँ पे जब मीडियल रेक्टस कंट्रैक्ट होगी, ये हमारी आई बॉल्स हैं, तो यहाँ पे जब मीडियल रेक्टस दोनों साइड कंट्रैक्ट होगी तो आँख जो है वो इनसाइड की ओर जाएगी, इस साइड भी इनसाइड की ओर जाएगी। तो इससे क्या होता है, इससे बेसिकली कन्वर्जेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड एज द कन्वर्जेंट सिक्वेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेम डाइवर्जेंट, अब यहाँ पे जो है देखो आंखें बाहर की तरफ जा रही हैं, दिस इज कॉल्ड एज द डाइवर्जेंट सिक्वेंट। तो यह एक आंख है, अगर ये दूसरी आंख है, यहाँ पे क्या होता है जब ये कंट्रक्शन करेगी, दिस इज द लेटरल रेक्टस मसल एंड हियर इज अगेन द लेटरल रेक्टस। जब लेटरल रेक्टस कंट्रक्शन करती है तब जो ये दोनों आंखें ये बाहर की तरफ जा रही है, सो ये बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे दिस टाइप इज कॉल्ड एज द डाइवर्जेंस एंड इट इज कॉल्ड एज द डाइवर्जेंट सिक्वेंट। तो इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट सिक्वेंट। Now these are the different types and the binocular moments of the in the ocular motilities. Now hope you will understand each and everything. Now like, share and subscribe that you will never miss an update. Thank you. Assalamu alaikum.